मैं आपको एक जादू बताता हूँ। ये है Redmi Note 9 Pro और ये है Poco M2 Pro। मैजिक घर पे मत ट्राई कीजिए। पोको के द्वारा लॉन्च कर दिया गया पोको M2 Pro, लेकिन लॉन्च के साथ ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश किया कंपाइल करने के जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं सभी का, टॉप मतलब एक क्लास क्रिएटर, और ये भी कोशिश किया है जो लॉन्च में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। बी बूम करके एक इंग्लिश क्रिएटर है जो कि अंग्रेजी माध्यम में आपको बातों को लेके आते हैं, और उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो बैंग ऑन है। अगर आपको रिव्यू करना सीखना है तो उनके वीडियोस को देखिए, या फिर आपको रिव्यू देखना है तो बी बूम के इस वीडियो को देखिए। बूम के अलावा रुहेश भाई, ट्रैकिंग टेक, या फिर आपको और भी बहुत सारे क्रिएटर जिनका मैंने यहाँ कंपाइल किया है, इवेंट टेक्निकल गुरुजी। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आए, लेकिन आप लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें ऐसी बातें बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि शायद किसी के द्वारा नहीं बताई गई हो मार्केट में। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ये जो स्मार्टफोन है खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपने Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन खरीदा होगा तो बैड लक, ये जो स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपने Redmi Note 9 Pro नहीं खरीदा हुआ है तो आप डेफिनेटली Poco M2 Pro is the Redmi Note 9 Pro plus some tidbits of the Redmi Note 9 Pro global version, and that equals the brand new Poco M2 Pro. Yeah, that's pretty much it. Now, I'm just not sure what's the point of this phone. Why does this phone even exist? I mean, like I said, this is just the Redmi Note 9 Pro rebranded, but yeah, let me get into details. First of all, both of these phones have the recently banned app Hello pre-installed to them. I understand it was so they should have removed this. But that's not all. The cleaner app on these phones is a big privacy issue. Calendar, location, mic, physical activity details, storage, telephone. Why does a cleaner app require all this? Users have the choice. Yes, I went ahead and unticked it, but a lot of people will not notice it and just go ahead with it. Now coming back to the Poco M2 Pro, let me just say this, it's disappointing. But I'm just disappointed with this whole rebranding. The fact that Poco is now just re-releasing Redmi phones. It's pretty sad. बात करता हूँ इसी फोन के बारे में, तो यार फोन ठीक ही लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा। अगेन देखने में तो बेसिकली डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है Xiaomi के Redmi Note 9 Pro से, और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो Qualcomm Snapdragon 720G. The Poco M2 Pro actually comes with a 33-watt charger inside the box, which is the same as the Redmi Note 9 Pro Max in India. The Redmi Note 9 Pro globally actually comes with a 30-watt charger inside the box. That was really tough. So as you can see, the Poco M2 Pro has a really confused identity in our country. It is a decidedly safe bet and doesn't do much to actually, upkeep the legacy of the excellent Poco F1. While the Poco X2 had a similar problem, the Redmi K30, which it was based on, never reached our shore. So technically, it was one of a kind in India. Now, as for the M2 Pro, it's merely competing in a space where there's competition available in the form of a near identical twin from its technically parent company Xiaomi. The camera was sort of oversaturating stuff at times, particularly when there were a lot of plants, green plants. It was oversaturating, like it reminded me of the old Samsung smartphones. And also in the bokeh mode, if you have noticed some of the samples near my hair, it was not done as well. So definitely I would say as of now, if camera is the highest priority, I frankly feel still the Poco X2 has a better camera than this one. सब वीडियो में मैं हर फोन की ओपिनियन देता हूं, वो तो दूंगा ही, आगे भी दूंगा और इसका भी दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों फोन तो मुझे काफी अच्छा लगा है, ऑनेस्टली कहता हूं। बिल्ड काफी अच्छी है, पीछे ग्लास बैक है, डिस्प्ले भी आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो जो बिल्ड है वो आपको यहां पर काफी अच्छा मिलता है, लेकिन थोड़ा चौड़ा, थोड़ा बल्कि, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात दोस्तों, डिस्प्ले पे अगर हाइयर रिफ्रेश रेट होती तो मेरे ख्याल से और भी मजा आता था, लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले है क्वालिटी है दोस्तों वो अच्छी है। वहां पर आप Poco M2 Pro equals the Redmi Note 9 Pro minus ads plus a 33-watt charger. Now, if you're someone who's bothered by MIUI ads or you want a faster charging phone, then the Poco M2 Pro might be the right phone for you. Not too different from Redmi Note 9 Pro दोस्तों। जी हाँ, मतलब 33 watt चार्जिंग एंड बैक, ये दो चीज़ें जो हैं
ये अलग है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। अगर मैं वही डालता था मेरा Redmi Note 9 Pro का वीडियो अनबॉक्सिंग तो इट वुड हैव बीन द सेम, सिर्फ बैक और जो 33 वॉट चार्जिंग है उतना ही डिफरेंस है। अब देखना है हाउ डज इट कम्पीट, मतलब अगर सिमिलर आप लेके आ रहे हो, सिमिलर फोन्स आप लेके आ रहे हो, हाउ आर दे गोइंग टू कम्पीट विथ ईच अदर। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये फोन 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले वाला फोन है। स्नैपड्रैगन 720G लगा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी है और सबसे बड़ी बात 33 वाट का चार्जर है। तो क्या ये फोन बेकार है? बिल्कुल नहीं, फोन बहुत अच्छा है। क्या प्राइस रेट ज्यादा रखा गया है? बिल्कुल भी नहीं, प्राइस भी बहुत अच्छा रखा गया है। लेकिन समस्या कहां आ रही है? देखिए, समस्या यह है कि पोको एक ऐसा ब्रांड था जिसको लेके दिमाग में ऐसा इमेज क्रिएट किया गया था, या आप कह सकते हैं कि पोको F1 के लॉन्च के बाद हमने इस तरीके से बातें सोची थी कि पोको जो फोन लेके आएगा तो उसको हमें लेना ही लेना है, क्योंकि उनके द्वारा जो फोन लॉन्च किया गया पोको F1 उस टाइम के जितने भी फोन थे उन कंपटीटर फोनों से बहुत ऊपर था, और साथ ही साथ उस प्राइस रेंज में वैसा कोई भी फोन अवेलेबल नहीं था। आज की डेट में भी वो फोन काफी मायने रखता है, तो हमें पोको से वो तरीके की उम्मीद थी। पोको X2 आया, कुछ भी नहीं खास, Redmi K30 का रिब्रांडेड। पोको M2 Pro से हमें कुछ उम्मीद था, लेकिन प्रो क्यों लगाया है इस फोन के अंदर ये पता नहीं, क्योंकि ये भी आपको Redmi Note 9 Pro का कॉपी है बिल्कुल। सिर्फ 33 वाट चार्जर लगा दिया गया है, एड्स को हटा दिया गया है। दोस्तों, हमें किसी ब्रांड से कोई शिकायत नहीं है, मैं यहाँ निगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन बात यह है कि जब आप किसी चीज़ का हाइप क्रिएट कर देते हो, किसी चीज़ के बारे में इतनी बातें बता देते हो, तो कस्टमर्स को बेवकूफ़ मत बनाओ। कस्टमर्स को ये मत बोलो कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो बेस्ट है। एक प्रोडक्ट आपका एक कंपनी का, एक ब्रांड का नहीं बिकता है, उसी को दोबारा नाम चेंज करके 2-4 चीज़ें ऊपर से डाल के और आप दोबारा से फ़ोन ले आते हो मार्केट में, और आप एक तरीके से कस्टमर को गुमराह कर रहे हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात, यूट्यूबर में कुछ ऐसे कैटेगरी के यूट्यूबर हैं, मतलब कि मैं यूट्यूबर को 3 कैटेगरी में बांटता हूं इन सारे वीडियोस के अंदर। पहला ये कि जो ब्लंटली आपको बताते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, खत्म बात, इसके आसपास कोई भी दो राय नहीं। दूसरे टाइप के कौन से यूट्यूबर्स हैं? देखिए, कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग हैं जो कि निगेटिव पॉइंट के ऊपर जस्ट उसके बाद एक पॉजिटिव बात रख देते हैं। मतलब ये कि फोन में ये गड़बड़ है और ये है तो इसलिए अच्छा है फोन। इस तरीके के दूसरे टाइप के यूट्यूबर्स हैं। और तीसरे यूट्यूबर ये हैं कि आपको कोई भी फोन वो रिव्यू करते हैं, लेकिन अगर उनके पास सब कुछ आया हुआ है, सब कुछ क्या आया हुआ है ये बताऊंगा नहीं मैं, तो वो लोग हर एक फोन को इतना जबरदस्त बता देंगे कि आपको लगेगा भैया यही फोन लेना है। मतलब कि 33 वाट का एक एडेप्टर चेंज किया गया है, उसको बोला जा रहा है चार्जिंग टेक्नोलॉजी को बदल दिया गया, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी इस फोन के अंदर चेंज कर दी गई है। मतलब इस तरीके की चाटुकारिता अगर की जाएगी कंपनीज की, तो कहाँ जाएंगे कस्टमर्स जो कि आपको देख के फोन खरीदते हैं कि आपके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, आपके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? एक जगह तो आप किसी कंपनी को बहुत गाली देते थे, उसी कंपनी के दूसरे फोन को अब आप कुछ मतलब बोल ही नहीं रहे हो, तीसरे तरफ आप उस कंपनी के साथ अलाइन हो जाते हो अपने आप को और लॉन्च भी करा रहे हो प्रोडक्ट। अब सिंपल बात यह है कि जब आप किसी कंपनी का लॉन्च करते हो कोई प्रोडक्ट, तो क्या आपका जो ये दिल है ये मानेगा उसके बारे में गलत बोलने के लिए? क्योंकि आपके पास तो बहुत कुछ आया हुआ है। ट्रैकिंग टेक को मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इशू तो उठा लिया और थोड़ा सा बोला है। जरा जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं इन तक वीडियो को पहुंचाइए, और प्लीज़ भाई लोग, आप लोग मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहे हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिए। मैं आप लोग का बस एक आंख खोलने की बात कर रहा हूं कि आप लोग बस इस बात को ध्यान रखिए, कस्टमर की सोचिए पहले। कस्टमर का इसलिए सोचना जरूरी है कि पूरे साल का सेविंग वो लगा देते हैं इस फोन को खरीदने में। 20,000 रुपये एक बंदा अगर लगा रहा है फोन खरीदने में ना, तो उनको एक अच्छा फोन दिलवाइए आप लोग। मतलब आप लोग अच्छा रिव्यू करते हैं नो डाउट, लेकिन उसके कॉन्स को ही बताइए और कोशिश ये कीजिए कि जो चीज़ें प्रॉब्लम है उसके बारे में आप लोग बात करें ब्रांड से। ब्रांड से कौन बात करेगा? उसके सर्विस सेंटर के बारे में कौन बात करेगा? उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? मोटोरोला फ्यूजन के अंदर एयरटेल के सिम नहीं काम कर रहे हैं, इसके बारे में किसी ने बात किया है क्या? ये सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा, और इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है ना उतने लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।